اور سب نے بڑا کام کیا. یہ جرنی بڑی ٹف تھی لیکن خدا نے اس کو سموتھ بنایا. اور میں ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر میرے ساتھ نکالیے گا خدا کے کلام میں سے. ان کے پاس خدا کا کلام ہے, نکالیے زبور کی کتاب, زبور 126, زبور 126 اور اس کی 5ویں آیت. خدا کے کلام میں یہ آپ سب کے لیے حوالہ ہے. لکھا, جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں, جو بولیے, جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. کون کاٹیں گے؟ آج ہم اپنی کلیسیا کی سالگرہ ہی نہیں منا رہے, بلکہ ہم گزرے ہوئے سالوں کا جشن ہی نہیں منا رہے, بلکہ ہم خدا کی وفاداری, اس کی محبت, اس کے عظیم کاموں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جو اس نے 17 سال سے کیے ہیں. اور یاد رکھیے, یہ جرنی بڑی ٹف تھی. بائبل میں لکھا ہے, جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں, پہلے تو آپ نے بونا ہے, پہلے آپ نے ورک کرنا ہے, پہلے اس سے پہلے کہ آپ کو زندگی کے اندر کامیابی ملے, آپ کو زندگی کے اندر ترقی ملے, اس سے پہلے کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو, پہلے آپ کو آنسو بہانے ہیں. اس کے لیے محنت کرنی ہے, دعائیں کرنی ہے, آنسو بہانے ہیں. اور یاد رکھیے, قربانی دینی ہے, راتوں کو جاگنا ہے اور دعا کرنی ہے اور خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے, آنسوؤں کے ساتھ دعائیں کرنی ہے. اس چرچ کی ہر بنیاد کے اندر, اس بلڈنگ کے ہر اینٹ کے اندر آنسو شامل ہیں, خدا کے لوگوں کی دعائیں شامل ہیں جو پہلے 17 سال سے پہلے دعائیں کر رہے تھے کہ خداوند کب تو یہ موقع دے گا کہ ہم تیرا گھر بنائیں گے, کب تو موقع دے گا کہ ہم تیری وفاداری کا شکریہ ادا کریں گے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں, میں اور میرا بھائی پاسٹر فیاض صاحب اور سارے لوگ ہم دعا کیا کرتے تھے کہ خداوند انجیل پوری دنیا کے اندر جائے, لوگ انجیل کو سنے, لوگ یسوع کو قبول کریں, لوگ یسوع مسیح کی ذات پر ایمان لائیں. ہمیں خداوند یہ موقع دے تاکہ ہم تیرا گھر بنائیں, ہم تیری پرچار کریں, ہم تیری خدمت کریں, ہم تیرے لوگوں کو ٹرین کریں, ہم لیڈر تیار کریں, ہمارا لوگ تیار کریں. خداوند ہمیں یہ موقع دے. آنسوؤں کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں صرف آسانیاں چاہتے ہیں. This journey has been not an easy journey. آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ یاد رکھیے, یہ آسانی سے جگہ نہیں بنی. اس کے لیے آنسو ہے, اس کے لیے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, فیلئر ہے. ایک وقت آیا کوئی جگہ نہیں تھی عبادت کرنے کی, ایک وقت آیا چھوٹی سی چھت تھی, ایک وقت آیا بارش ہوئی, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ہم نے جاری رکھا. اور کلام میں لکھا ہوا ہے, جو آخر تک جاری رکھے گا, جو آخر تک برداشت کرے گا, وہ زندگی کا تاج پائے گا. جو آخر تک برداشت کرے گا, جو چھوڑ جاتے ہیں وہ لوزر ہو جاتے ہیں, جو چھوڑ جاتے ہیں وہ ہارے ہو جاتے ہیں. آج رات میں آپ کو یہ بتانے نہیں آیا کہ خدا نے ہمارے لیے بڑے کام کیے. آج رات میں آپ کو یہ بتانے آیا, خدا ہر ایک کے لیے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہر ایک کے لیے
आंसू आते हैं, लोग तारीफ चाहते हैं, हमारी तारीफ की जाए, हमारे नाम को सराहा जाए। बेटा आंसू कहां पर है जिसको तेरे देख कर सराहा जाए? बेटा दुआएं कहां पर हैं? बेटा मेहनत कहां पर है? और कलाम में लिखा जो आंसुओं के साथ बोलते हैं। 17 साल पहले ये चर्च, ये जगह वजूद में नहीं थी, लेकिन इसके लिए आंसू बहाए गए। कितने लोग हैं, शायद वो आज अपने बच्चों के लिए आंसू नहीं बहने बहा रही, शायद अपने बेशोहर के लिए आप आंसू नहीं बहा रहे, शायद आप अपने आने वाली नस्लों के लिए आंसू नहीं बहा रहे। अगर आप आंसू बहाना शुरू कर देंगे, आज रात मैं आपको बताने आया हूं, आपके आंसुओं को खुदा कभी रायगा नहीं रहे, कभी भी खुदा रायगा नहीं जाने देगा। मैं आपको आज बताऊं एक बात, आसमान पर आंसू खुदा ने जमा किए हुए हैं, सिर्फ आंसू। लिखा जो आंसुओं के साथ बोते हैं। फसल अचानक नहीं आती, टाइम लगता है। आपने अपने पहले दिन वाले बच्चे से उसको 3 साल का बनाने के लिए आपने उसके लिए मेहनत की, आपने उसके लिए रातें जागी, आपने उसके बुखार में उसकी मदद की। आप जब वो लो था आपने उसकी मदद की, जब वो सुनिए जब वो रो रहा था आप उठ गए, जब उसे भूख लगी आपने उठकर उसको दूध दिया। इससे पहले कि वो चलना शुरू हो उसको आंसू आपकी तवज्जो की जरूरत थी। याद रखिए, इससे पहले कि ये सारी बरकतें आती, इससे पहले इसके लिए आंसू बहाए गए थे। और जैसे ब्रदर मार्टिन कह रहा था कि मेहनत की गई, और ये जो सुने, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे किसी का नहीं पता, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब कोई बेफजूल मेहनत के बगैर मुझे हाथ डाले। मुझे किसी का नहीं पता, मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कहा इस काम के लिए मैंने मेहनत नहीं की, मैं डिजर्व नहीं करता। जहां पर मैंने काम किया मुझे वहां पर फूल मिलने चाहिए, मुझे वहां पर नाम मेरा लिया जाना चाहिए। मुझे खाली शान और शौकत नहीं पसंद। मैं कहता हूं मैं आंसुओं के साथ चीजें हासिल करूं। आज रात कितने लोग हैं, गौर से सुने, जो खाली शायद आंसू नहीं बहा रहे, तैयारी नहीं कर रहे, और वो रिवॉर्ड चाहते हैं। मेरे पीछे बोलिए, जो आंसुओं के साथ बोते हैं, हाँ, वो खुशी के साथ काटेंगे। एक गांव में चंद ईमानदार एक छोटी सी इबादत किया करते थे। ना उनके पास इमारत थी, ना उनके पास कुर्सियां थी, ना उनके पास साउंड सिस्टम था, ना उनके पास माइक था, लेकिन उनके पास क्या था? ना उनके पास शीट थी, ना उनके पास तंबू था, लेकिन उनके पास एक दरख्त था, और उस दरख्त के नीचे वो बैठकर दुआ किया करते थे। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, वो एक दरख्त के नीचे बैठकर दुआ किया करते थे। और जब बारिश आती तो वो गीले हो जाते, और लोग खड़े होकर उनका मजाक उड़ाते। अब अगले साल ये खत्म हो जाएंगे, अगले साल ये इबादत नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो इनके पास कुर्सी है, ना इनके पास साउंड है, ना इनके पास टेबल है, अगले साल ये खत्म हो जाएंगे। लोग उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन सालों में साल वो दरख्त के नीचे दुआ किया करते थे। और दुआ कैसे करते थे? आंसुओं के साथ दुआ करते थे। उनको गिराने वाले गिर गए, वहां पर एक बहुत बड़ा चर्च बन गया। उन्होंने किसी ने पूछा, तुम्हें तो लोग गिराना चाहते थे। उन्होंने कहा, लोगों ने हमारे आंसू नहीं देखे, क्योंकि खुदा आंसुओं की कदर करता है। आप गिराने वालों से परेशान ना हो, आप आंसू बहाते रहे। किसी
कैसे मुमकिन हुआ? How can it will be a possible? सुनिए, उन्होंने कहा तुमने बारिश में हमारे आंसू नहीं देखे, तुमने बारिश में आंधियों में मेरे आंसू नहीं देखे। मैं आज आपको बताऊं, आप शायद लोगों के सामने आंसू बहाएंगे, आपके लोग आंसू रद्द कर ले, लेकिन अगर आप खुदा के हुजूर आंसू बहाना शुरू कर दिया, खुदा आपके आंसुओं को बाबा डीजे रद्द नहीं करेगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको बरकत देगा। खुदा, लोग कहते थे ये कलीसिया ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, लेकिन वो कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया थी। इधर देखिए मेरे अजीजों, ज़बूर 56 की 8 आयत, कौन सा मैं हवाला बोल रहा हूं? ज़बूर 56 की 8 आयत। ज़बूर 56 की 8 आयत में क्या लिखा हुआ है? आमीन। तू मेरी आवारगी का साब रखता है, मेरे आंसुओं को अपने यहां पर रख दे, मेरे आंसुओं को अपने मशकीजे में क्या कर दे जॉर्ज, रख ले मेरे आंसुओं को अपने मशकीजे में। कहां पर? बोलिए कहां पर? मशकीजे में। खुदा आपके आंसू जो आप दुआ में गिराते हैं ना, उसको जमा कर देता है। और कलाम में लिखा जो आंसुओं के साथ होते हैं वो एक औरत दुख के साथ नए इंसान को दुनिया में नहीं करती, लेकिन जैसे दुख ओवर हो जाता है, नया इंसान दुनिया में आ जाता है और वो उस गम को भूल जाती है जो उसने लेबर वाले दिन बर्दाश्त किया। फिर वो गम को, फिर वो बच्चे को उठाती है, फिर वो रोती नहीं है, उसके लिए खुशी का मौका। आज रात कितने लोग हैं जो सिर्फ, गौर से सुनिए, बरकते चाहते हैं, आंसू बहाना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। इस सारी एनिवर्सरी में, इन सारे कामों में, जितने भी लोग यहां पर पुराने हैं 2009 से, 2009 से जो चर्च का हिस्सा है, कई लोग हैं 10 से जुड़े हैं, कई लोग 9 से जुड़े हैं, कई लोग 11 से जुड़े हैं, कई लोग 12 से जुड़े हैं, कई लोग, लेकिन कुछ लोग 9 से जुड़े हैं और वो लोग आज तक जुड़े हुए हैं और खुदा ने उनको बरकतें दी हैं और आज वो खुशी के साथ बरकतें काट रहे हैं। मेरे अजीजों, जो जुड़े रहते हैं वो बरकत का बाइस बनते हैं, जो जुड़े रहते हैं वो बरकत का बाइस बनते हैं। मैं दुआ करना नहीं छोड़ूंगा। आमीन। क्या लिखा है? जो आंसुओं के साथ बोते वो कैसे काटेंगे? हाँ, इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए, बस 5 मिनट और मैं बोलने वाला हूं। कितने लोग हैं जो आंसू बहा रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। लोग आंसू नहीं बहाते। मैं आपको बताऊं, हंस आप सबके लिए सकते हैं, रो आप सबके लिए नहीं सकते। आपके दांत सबके लिए हैं, लेकिन आपकी आंखें सबके लिए नहीं। और खुदा ये नहीं कह रहा, खुदा कह रहा जो आंसू बहाए वो कैसे काटेगा? कुछ ही बोले, किसके साथ कैसे काटेगा? पहले क्या करना है? पहले बोना है, पहले, फिर क्या होना है? फिर क्या? काटना। पहले बोना है। आज कई लोग, सुने, आज कई लोग कहते होंगे, आज कई लोग कहते होंगे कि यार ये बड़े बेहतर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने पहले बोया है, घर बो दिया है, अपना टाइम बो दिया है, अपनी जवानी बो दी है, अपना वक्त बो दिया है, मेहनतें उन्होंने टाइम दिया है। खुदा आज अपने ऊपर गौर करे, अगर मैं बेफल हूं तो इसका मतलब है मैंने आज तक खुदा के लिए कुछ नहीं बोया। अगर आप बेफल हैं
काटेंगे। आखिरी लफ्ज खुदा का क्या है? वो खुशी से, आंसू हमेशा नहीं रहेंगे, खुशी आएगी। पहले आयत के पहले हिस्सा में आंसू है, आयत के दूसरे हिस्सा में खुशी है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे माओ, मेरे दोस्तों, कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी बरकतें चाहते हैं। ये 17 साल जो आपको नजर आ रहे हैं, 17, इधर देखिए, 2009 से 17 जो आपको नजर आ रहा है, ये 17 बनने से पहले किसी ने 17 ईयर इससे पहले दुआएं की है, इससे पहले किसी ने मेहनत की है, किसी ने रोजा रखा है, किसी ने घुटने टेके हैं, किसी ने रोया है, कोई खुदा की बादशाही में रोया है कि खुदावंद तेरा घर कायम होना चाहिए, तेरी बादशाही फैलनी चाहिए। याद रखिए, फिर खुदा ने 2009 के अंदर अपना आसमान खोल दिया। जो चीजें बोई गई थी हम इन आंखों से देख रहे हैं, हम इन आंखों से देख रहे हैं। ये सब कुछ पहले ख्वाब था, पहले ये। और तुहानू याद है ज़बूर बना केड़ा, और कहती सहूनी यहोवा ने सादा हाल सी जिवें, और भाई सुपना कोई वेखदा, और कहंदे जो खुदा आजाद कर रहा सी ते सानू इंज लग रहा सी ख्वाब है, बल्कि हकीकत सी। याद रखिए, जो आप आंसुओं के साथ बोएंगे, जब आपके बच्चे जहाज उड़ाएंगे, जब आपके बच्चे इंजीनियर हो जाएंगे, जब आपकी बेटियां डॉक्टर हो जाएंगी, जब आपके बेटे डॉक्टर हो जाएंगे, जब आपके बेटे और बेटियां अमेरिका जाएंगे, अगर आज आप उनके लिए आंसू बहाएंगे, अगर आज उनके लिए रोएंगे, अगर आज उनके लिए आप मातम करेंगे खुदा के हुजूर, एक वक्त ये सब कुछ हो जाएगा। मैं इससे ताली नहीं बजानी, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2000 की बात है। हमारे जो बाइबल टीचर थे, उन्होंने सवाल किया सबसे, उन्होंने कहा शकील तू क्या करना चाहता है, फयाज तू क्या करना चाहता है। फयाज ने क्या बोला सुने, खड़ा हुआ पास्टर फयाज खड़ा हुआ तो कहता मैं मिशनरी बनना चाहता, अमेरिका में मैं गोरों को कलाम सुनना चाहता। अच्छा, वो हंस पिया, कहता यार इन्हों के माँ बाप दे अनपढ़ है, ये किवें चला जाएगा। पर साहब ने कहा मैं गोरों को कलाम सुनूंगा। 2000 की ये बात है, 36 साल पहले की बात। उदों सानू सुपना या लग रहा सी, टीचर नूं सुपना या लग रहा सी, यार इंज नहीं होना, यार ये पिंड च ही रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता था, जिस खुदा की ये मनादी करते हैं वो कादिर मुतलिक है, वो जलाल का बादशाह है, वो कादिर मुतलिक है, वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत। वो तो सुपना या लग रहा था, ख्वाब लग रहा था। आज रात मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, शायद चीजें आपको ख्वाब नजर आ रही हैं, शायद आप देख रहे हैं ख्वाब है ये, मेरा घर नहीं होगा, मेरे बच्चे अमेरिका नहीं जा सकते, मेरा बेटा जहाज में नहीं बैठ सकता, मैं नहीं बैठ सकती। ये आपकी सोच है। जिस खुदा को हम मानते हैं वो कादिर मुतलिक है, आसमान उसका है, जमीन उसकी है, चांद उसके है, सितारे उसके हैं, पाकिस्तान का सदर उसका है, अमेरिका का सदर उसका है, वो जलाल और कमाल का बादशाह है। बोना शुरू करें अंशुओं के साथ। फसल चाहते हैं, बोना नहीं चाहते, ऐसे ही है ना? हाँ, और बोलो, और बोलियो करो, क्या चाहते हैं? हाँ, सूखा साकी
उन लोगों को जो काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। मेरे पीछे बोलिए, जो आंसुओं के साथ बोलते हैं, आकर बोलिए, जो आंसुओं के साथ बोलते हैं, वो खुशी के साथ, वो खुशी के साथ, वो खुशी के साथ, वो खुशी के साथ, कैसे खुशी के साथ काटेंगे। अपने बच्चों के लिए बीज बोना शुरू करें। आप इधर देखिए, इधर देखें, बच्चे की तरबियत उस रास्ते पर करो जिस पर उसने चलना है। क्या है? जिस पर उसने, आगे बात बड़ी कीमती है, सुने माँ बाप, सुने, इधर देखो, सुन मेरी, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि तुम खुद भी उसी रास्ते पर चलते हो। आप बैठ के रिश्तेदार ने बुराइयां कर, तुम ना करें। आप बैठकर आपने कभी भी खुदा के लिए कुछ नहीं किया। आंसू, आपकी मां ने कभी आंसू नहीं पाए, पुत्र द्वार रो रो के करे, अगर तू किधर करना है। कई माँ पे चल चल चर्च चल जाते, तू उन्होंने कुछ भी नहीं सीखना जिन्हें जगह तू ना चल जाए। वो लोग बेफाल रहेंगे, वो कभी खुशी नहीं देखेंगे जो आंसुओं के साथ होते हैं। कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ पर मेहनत कर रहे हैं, रूहानी जिस्मानी पर होना शुरू करें। अपने बच्चों के लिए होए, अपने लिए होए। आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आप उस रास्ते पर खुद भी चलते हैं जिस पर किन को लेके जा रहे हैं। हाँ, तो खुद नहीं जाना। आप इधर देखिए, आप खुदा के खादमों की इज्जत नहीं करेंगे, आपके बच्चे नहीं करेंगे। आप उन पर लानत लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप बैठ के बुराई करेंगे, आप उन पर लानत लेके आ रहे हैं। आप चर्च नहीं जाते, बच्चों को कहे चर्च जाए, वो कभी नहीं जाएंगे, तो आप उनको बागी कर रहे हैं। आपने खुद कभी दायित्व की नहीं दी, आपके बच्चे कभी भी दायित्व की नहीं देंगे। आपने खुद जो फॉलो करना है उसी को बच्चों ने फॉलो करना है। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं चाहता हूं आप आंसुओं के साथ बोएंगे। कितने लोग बोएंगे? बोएंगे किसके साथ? और खुशी के साथ आपने काटेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।